Okay. Yes, very good morning, students, and most welcome in my online class. For those students, I am making and sending this video who are sitting in the home and they are not coming the school properly. I don't know what is the reason they are facing and why they are not coming in the school. Why are they not coming to school? I don't know. So for those students, self and help of them, I'm making this video and please listen this video and write these question answers in your notebooks. And my title is history have part history of the social science, and the topic name is rulers and building. This topic belong to essay first exam 2020, 21, 22, 21, 22, and listen this carefully. Today I am going to explain the question answers of this chapter. My first question is, how is Trabet's a principle of architecture different from the arcuate? In Trabet's style of the architecture, roofs, doors and windows were made by the placing horizontals beams across the two vertical columns, while the arcuate style of the architecture, the weight of the superstructure above the doors and windows was carried by the arc. Second point, Trabet's style of architectures were between the 7th and 10th century, while arcuate style of architectures were noticeable from 12th century. So जो and dear student, in olden days the architectures, they constructed the buildings and houses, monuments and forts, minarets and different type of buildings in India. The architectures they constructed in two styles. Number one, Trabet's. Number two, arcuates. Trabet's means horizontally. Now time you are looking, these are the buildings are rectangular shape and square shape, right? तो कुछ बिल्डिंगें वो दो प्रकार से बनाते थे, कुछ तो आयताकार, चौकोर और आयताकार के उसके डिजाइन में उसको प्रिपेयर करते थे, और कुछ बिल्डिंग्स को आर्क्यूरेट मींस गोलाकार यानी चाप के रूप में यानी गोलाकार रूप में उसको डिजाइन किया जाता था. तो ये टू स्टाइल्स. लेकिन जो ट्रैबीट स्टाइल थी ये 7वीं शताब्दी से लेकर 10th शताब्दी तक यानी सेंचुरी तक चला. लेकिन आर्क्यूएट जो स्टाइल थी ये जो नोटिफाइड की गई ये 12वीं शताब्दी से इसको बताया गया कि ये 12वीं शताब्दी में ये बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता था. नेक्स्ट आता है व्हाट इज शिखरा. शिखर क्या होता है? जो शिखर होता है, इट इज द हाईएस्ट रूफ ऑफ द हिंदूज टेम्पल.
प्राचीन काल में एंड नाउ डेज आल्सो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स दे कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया एंड इन हिस्ट्री historians architecture in olden days they also many architectures they constructed the different type of temples, many temples in India, and they constructed in two styles. Number one, Trabeat style and Arcuate style. And Trabeat style means horizontally beam style buildings and temples, and Trabeat's Arcuate जो style was means circular type, circular shape styles, the buildings made by the architecture in India olden days. तो शिखर, यहाँ पर शिखर का मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे ऊंचा हिस्सा, जो मंदिर का सबसे ऊंचा टॉप पॉइंट होता था उसको शिखर कहते थे, यानी चोटी, मंदिर की चोटी। और ये मंदिर की जो चोटी होती थी ये सबसे ऊंची और हाईएस्ट पॉइंट पर इसको स्टेट किया जाता था। दैट इज व्हाई दिस कॉल्ड इज ओल्डन डेज द आर्किटेक्चर वर कॉल्ड इट एज ए नेम बाय द शिखर। इसको शिखर का नाम दिया जाता था, यानी जो छत की सबसे ऊंचा पॉइंट होता था मंदिर या मस्जिद या गुंबद या किसी भी मॉन्यूमेंट्स का, तो उसको शिखर का नाम दिया जाता। तो हिंदू स्टाइल में, हिंदू लैंग्वेज में, हिंदुइज्म में इसको, टेम्पल्स में इसको शिखर कहते हैं। और शिखर पर दे स्टेड ए पर्टिकुलर वन फ्लैग बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर लाइक ऑरेंज कलर एंड रेड कलर, एंड दे these colors it is in Hindu religion called is god colors, religious colors. What is Petra Dura? Petra Dura, this is a very very important question कि Petra Dura क्या होता है। This Petra Dura is an architectural style in which colored hard stone are placed in the depressions carved into the marble or sandstone, creating beautiful ornate patterns. बच्चों देखिए, पहले क्या होता था कि जो हमारे वास्तुकार हुआ करते थे, हमारे कलाकार हुआ करते थे, जो हमारे स्टोन कटर्स, तराशी करने का काम, जो पत्थरों की तराशी करने के काम, पहले क्या होता था कि पत्थरों को दीवार में उनको अटैच किया जाता था, इनकी वॉल बनाने के बाद फिर उसके बाद उन सारे स्टोन्स को कटिंग की जाती थी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइंस, इन सर्कुलर डिजाइन एज वेल एज ट्राबीट डिजाइन स्टाइल्स में। तो ये कार्विंग सिस्टम जो था इसको पेट्रा डुरा के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इतिहासकार ने इसका पेट्रा डुरा का नाम दिया है। और ये मोस्टली पत्थरों को कट करके विभिन्न प्रकार के डिजाइन में उसको कन्वर्ट करके और उसको वेल्डिंग में या टेम्पल में या मॉस्को में और या मोन्यूमेंट्स में उसको बनाया जाता था। और उसको मोस्टली ये स्टोन, रेड स्टोन, सैंड स्टोन्स में सबसे ज्यादा इसको बनाया जाता है, क्योंकि द कार्विंग सिस्टम इन द सैंड स्टोन्स इजिली दे कैन कट द स्टोन कटर्स, दे कट इट वेरी इजिली बिकॉज द सैंड स्टोन जो बालू वाला पत्थर होता है जिसको बलुआ पत्थर कहते हैं, इस पत्थर को हमारा जो स्टोन कटर्स होते थे उनको इजिली बहुत स्मूथली उसको कट करते। और दूसरी बात, जब इनको फाइलिंग करने के बाद इसमें चमक भी बहुत अच्छी आती थी, यानी सुंदरता, इसमें बहुत प्रकार के जो बलुआ पत्थर इसमें कलरफुल होते थे और कलर होने के कारण इनका कलर कभी भी फेड नहीं होता था। तो इस प्रकार का जो सिस्टम था वो हमारा डिजाइन किया जाता था। इतिहासकारों ने, हमारे आर्किटेक्चर्स ने उसको डिजाइन किया और विभिन्न प्रकार के स्टाइल में उसको दिया। तो डियर चिल्ड्रन, these questions number and 3 questions I explained today. So you will write these 3 questions in your notebooks. Okay.